Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 23717106 and 2342 1050. And as always, the STD code for Delhi is 011, which you need to prefix before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444 और तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट वैल्यू रिसर्च के आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्यम। Thank you, Amrish. The top stories. India to become the third largest construction market in the next 2 to 3 years, says Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal. Foreign investors pump in nearly 9,000 crore rupees in the Indian equity market so far in April. And global crude oil prices rise for the fourth straight week. Brent crude jumps 1.5% this week. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन बाजार बन जाएगा। विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में अप्रैल में अब तक लगभग 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल मूल्यों में लगातार चौथे सप्ताह बढ़ोतरी दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत इस सप्ताह 1.5% बढ़ी। Well, now for all the details and news from the realty sector. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal said that the Indian real estate sector has been a critical engine of the country's growth story, providing large-scale employment. He said the sector has shown immense resilience in the last few years with the active support of the government. Mr. Goyal said this while addressing the National Investiture Ceremony of the Confederation of Real Estate Developers Association of India, that's CREDAI, through video conferencing in Mumbai yesterday. The minister added that the real estate sector will provide huge business opportunities, generate employment, and provide big avenues for the startup ecosystem. Mr. Goyal said India is poised to become the third largest construction market in the next 2 to 3 years. He remarked that the union budget also focused significantly on infrastructure with nearly 10 lakh crore rupees direct investment of the central government. He mentioned that the Real Estate Regulatory Authority has played a transformational role in formalizing the sector and bringing transparency and better governance practices. Speaking on the government's role in supporting the sector, he said that GST has been simplified to make the real estate sector more resilient and easy to work. Mr. Goyal mentioned that insolvency and bankruptcy code has helped clean up the sector with banks willing to lend with confidence. He also noted that the effective and speedy redressal of housing sector complaints has given a major impetus to this sector. और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे श्रोता योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। पूरी मार्केट मंत्रा की टीम को मेरा हार्दिक नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल जो है सर से वो ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में सर इस वक्त म्यूचुअल फंड जो है 3 तरीके के हैं।
एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है यूटीआई और एक मेराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप है और 2 स्मॉल कैप फंड है। तो सर एक तो मुझे ये पूछना था कि एमर्जिंग मेराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप में 2500 की कैप लगी हुई है, तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने में दिक्कत आती है। तो क्या ये हटने के चांस हैं जो अपर कैप इस पर लगी है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, या फिर हमें किसी और म्यूचुअल फंड की तरफ फिर रुख करना चाहिए? जी देखिए, मेराई एसेट आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड पे कुछ साल पहले 2500 रुपए तक मैक्सिमम निवेश की एक लिमिट लगा दी गई थी और फंड कंपनी के मुताबिक लिमिट इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इस फंड का साइज जो है अब इतना हो गया है और जिस रफ्तार से इसमें पैसा आ रहा था कि शायद अगर उसी रफ्तार से पैसा आता रहेगा तो फंड मैनेजर बहुत एफिशिएंटली उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और उससे उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक मोटे तौर पर देखें तो काफी इन्वेस्टर सेंट्रिक एक डिसीजन था, क्योंकि कोई भी फंड कंपनी ज्यादा पैसा मैनेज करने लेने से मना करे, ये एक तरह से अपने बिजनेस के अगेंस्ट, अपने बिजनेस इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन है। लेकिन इन्वेस्टर इंटरेस्ट में उन्होंने डिसीजन लिया तो ये काबिले तारीफ है। देखिए, आपको इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टोटल मंथली कितना आप निवेश करते हैं, एसआईपी आपका कितना रहता है। 2500 अगर एक बहुत छोटा अमाउंट है आपके टोटल मंथली निवेश में, तो आपको जरूर बाकी ऑल्टरनेट्स देखने चाहिए, क्योंकि वरना ये सिर्फ एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहेगा, इसका कोई बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो जो आपका एग्जिस्टिंग पैसा इस फंड में लगा हुआ है वो आपको बनाए रखना चाहिए। ये एक बढ़िया फंड है, अच्छे से मैनेज होता है, एक बढ़िया इक्विटी फंड हाउस से ये आता है। इनके फंड मैनेजर काफी अनुभवी और उन्होंने 10-12 साल में काफी बढ़िया से पैसा मैनेज किया है। तो आप एग्जिस्टिंग निवेश अपना बनाए रखिए और लेकिन अगर ये आपके लिए काफी एक बड़ा लिमिटिंग फैक्टर बन रहा है कि सिर्फ 2500 रुपए महीना, तो आपको विकल्प जरूर देखने चाहिए। Right. Let's move on and take a next caller. We have Vineet joining us from Jaipur. Good evening, Vineet, and welcome to Market Mantra. नमस्कार सर। Yeah, go ahead, put your question. हाँ सर, ये आईसीआईसीआई और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे आपको उम्मीद है कि जिनमें आज पैसा लगाएं तो आज से 5 या 6 साल के बाद वो अच्छा रिटर्न दे सकती है, ये पूछने से। Okay, fine. देखिए, कोई भी किसी भी निवेश के लिए मार्केट लिंक निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का होता है, कोई भी निश्चित तौर पे तो ये नहीं कह सकता। काफी रिटर्न जो है डिपेंड करते हैं कि मार्केट कैसे चलती है, क्योंकि आप ये मानिए कि कोई भी इक्विटी फंड आप लेते हैं किसी भी फंड हाउस का, उसमें 5 साल में उसका कैसा निवेश, कैसा उसके रिटर्न होंगे, ये ज्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट उस दौरान कैसे परफॉर्म करी है। फंड मैनेजर इतना कर सकता है कि वो हमेशा मार्केट से थोड़े बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर मार्केट ही डाउन है तो फंड मैनेजर अच्छे रिटर्न दे जबकि मार्केट खराब चल रही हो, ऐसा बहुत कम, रेयरली देखने में आता है। तो देखिए, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के फंड्स काफी ठीक ठाक रहे हैं, खासकर पिछले 2-3 साल में, जब वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जो कि उनका स्ट्रॉन्ग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, जिस निवेश पद्धति को वो फॉलो करते हैं, उस पद्धति ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसी कारण से एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्रू दोनों के ही इक्विटी फंड्स ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं पिछले 2-3 साल में। जब से पहला लॉकडाउन लगा था उसके बाद का अगर हम 2021, 2022 और अब 2023 का दौर देखें, तो आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप प्योर इक्विटी फंड ना देखें, आप कोई हाइब्रिड फंड की तरफ जाएं, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। आईसीआईसीआई प्रू का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो इक्विटी एंड बॉन्ड फंड है वो काफी अच्छे फंड्स में उसकी गिनती होती है, तो आप उस टाइप का फंड देख सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं, महीने दर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि 5 साल का जो होराइजन है वो इस टाइप के फंड के लिए एक रीजनेबल अच्छा होराइजन है। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि रिटर्न आपके निराशाजनक नहीं होंगे इस फंड से। जी, और मुंबई से हमारे श्रोता संजय लाइन पे हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल है, आई हैव 2 क्वेश्चन। जी। First question is, if I buy and sell sovereign gold bond from the stock exchange, how will it be taxed on redemption, long term as well as short term? And my second question is, which tranche of sovereign gold fund has high liquidity? Okay. Which tranche? Yes, Ashutosh, what would you say? He is interested in investing in the sovereign gold bond.
जी, तो पहले तो मैं the second question that he is asked regarding the liquidity. See, I won't have the exact stats right now available with me to recommend a specific tranche. For that, he will have to look at the trading volumes of sovereign gold bonds on a stock exchange to find out which tranche is generating sufficient liquidity. Regarding taxation, if he holds these bonds, buys and then holds these bonds till maturity, then the proceeds are tax-free. So sovereign gold bonds have a big advantage if somebody wants to invest in gold, although we are not great fans of gold as an investment avenue, to be honest. But if somebody is keen to take exposure to gold, then sovereign gold bonds appear as one of the best alternatives, simply because, one, they have the tax advantage. Second is that they earn an additional 2.5% per annum rate of interest over and above the price appreciation of gold that one would be able to realize upon maturity. So this 2.5% additional interest that they earn, they would be taxed as per the slab system of the investor, while the maturity proceeds upon holding the bond till maturity will be tax-free. So any capital gains that one realizes would be tax-free. Yes, let's move on and take our next caller. We have Gaurav joining us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening, Gaurav, and what's the question? Good evening, sir. So my question is for some of my friends who live abroad. They have invested, they're NRIs, they invested in mutual funds and FDs. Yeah. They booked some profit, and it seems in 2021, and they are getting some notices from the respective tax departments of those countries. Okay. Is there any system in which Government of India or Government of Tax Department of India, that is Income Tax, will also inform rather while sending notices to them, because it's going under automatic exchange of information, AIS, whatever they call it, and they will also be informed, because NRIs are investing in India and they are our own people. So why should they get surprise notices rather than sending automatically to them? They should also inform Income Tax Department. ऐसा कुछ provision है क्या Income Tax Department का जो they're informing NRIs also? Yeah. आपके लिए कोई notices भेजे हैं, ऐसा कुछ provision है क्या हम देख सकते हैं कि इनका notices जाने वाला है उनको? Because अभी 2021 के notice उनको आने लगे हैं, तो ऐसा surprise क्यों? Yes, Ashutosh. On the market for small cap investors. Thank you. Okay. Okay, so to answer your first question first, unfortunately, I may not be the best resource to be able to advise you on the nuances of how the notices are, generated, and if there is any facility where an NRI can go and check. I mean, what I can say is that the government of India has entered into these double tax avoidance, agreements with a lot of countries, and really the nuances of taxes differ from jurisdiction to jurisdiction. So which country is currently the country of residence of an NRI? A lot of taxation related issues depend upon that, and what kind of DTAA India has with that specific country. So I would suggest that a tax consultant who is particularly knowledgeable about dealing with NRI related tax issues could be a better person to address that question. Coming to your second one regarding small cap investing, I would say that small caps are, when you look at long term, small caps can be a very rewarding asset class to hold, but you need to have a longer time frame than otherwise you would have on any other equity investment. So, invest in small caps if you have at least 8 to 10 or more years left, and you are able to withstand deep phases of deep volatility, phases of deep correction in between. And for the other ground rule for investing in small cap is that it should ideally not be a very big part of your investment. Have it as a supplementary, have it as something which provides a kicker to your return. So maybe 15, 20, 25% allocation, not more than that, and be particularly disciplined. If you want to invest in small caps on your own, then you need to be very conversant, very thorough with your research. Otherwise, small cap funds are a better option, because the mortality can be particularly high in small cap companies, which unlike large caps. But yes, for an equity investor, having a limited exposure to small caps can really do wonders
in a long-term portfolio. So I am pretty optimistic and pretty bullish on the prospects of small caps, and it is linked to my views on Indian economy in general over the next 10, 15, 20 years. If the Indian economy is going to continue to grow and grow fast, then the small cap segment will certainly be a very strong beneficiary. But it will come with periods of deep correction, which one would need to withstand. और दिल्ली से हमारे श्रोता राकेश लाइन पे हैं। राकेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अमरीश जी, रंगा जी और आशुतोष जी को शुभ संध्या। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे सरल तरीके से समझाते हैं, समय बहुत अच्छा बीत जाता है, पर इस समय कार्यक्रम का 1 घंटा होना चाहिए। Thank you so much, Rakesh ji. We'll try and see if that is feasible. Yeah, please go ahead, put your question. आशु जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी, तो हमने म्यूचुअल फंड के लिए बैंक से जाके मैनेजर से बात करी। बैंक मैनेजर कहते हैं कि इसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं है, अब मत इसमें जाइएगा। दूसरा सवाल ये है कि अब एफडी के इंटरेस्ट रेट में क्या कुछ बढ़ोतरी होने के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि अप्रैल में या अप्रैल के बाद इसके 7.5% होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी 7.25% है एफडी के ऊपर। Yeah, but Ashutosh, isn't it really bewildering that a manager of a bank is kind of discouraging investment in mutual funds? Yes, it is in a way, and really depends upon the entire context. So देखिए, बैंक मैनेजर ने आपको मना किया, मैं बहुत डिटेल में बिना पूरी जानकारी के शायद इस पे बहुत कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना एडवाइस करूंगा लेकिन कि अगर आपके पास एक लंबा टाइम होराइजन है, आप निवेश करना चाह रहे हैं अपने लंबे किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए, 10, 12, 15 साल का आप होराइजन लेके चल रहे हैं, और आप वॉलेटिलिटी, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अगर आप उसको झेलने की क्षमता रखते हैं तो जरूर आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखना चाहिए। अगर वो बैंक शायद इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने में, या उनके कुछ और ड्राइवर्स होंगे इस वक्त, आप कहीं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और किसी बैंक ब्रांच में आप पता कर सकते हैं। देखिए, उस पर्टिकुलर बैंक और ब्रांच मैनेजर के बारे में मैं कोई टिप्पणी असक्षम हूँ, लेकिन आपके अगर जो निवेश के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अगर म्यूचुअल फंड निवेश को मीट करते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प है निवेश का और अपनी पूंजी को बढ़ाने का। दूसरा, आपने पूछा फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। देखिए, फिक्स डिपॉजिट की जो ब्याज दर होती हैं वो तकरीबन बढ़ेंगी या गिरेंगी, इस बात पर निर्भर करता है कि इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका रुख क्या है। जब इकोनॉमी में जो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करता है, उनकी क्वार्टरली मीटिंग में जो अपने वो डिसीजंस लेते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते हैं तो आप देखेंगे कि बैंक्स भी अपने ब्याज दर फिक्स डिपॉजिट्स पे गिराते हैं, और जैसे जैसे जब एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में तेजी का दौर आता है, जब आरबीआई प्रोग्रेसिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, तो बैंक एफडीज के भी रेट बढ़ते हैं। तो ये काफी तालमेल के साथ ये सारा काम चलता है। हमने पिछले साल में देखा कि काफी जल्दी आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए और उसका फायदा जो है निवेशकों को, फिक्स डिपॉजिट के निवेशकों को हुआ, क्योंकि एफडीज के रेट काफी बढ़े। अब हम अगर हम अपना अब बढ़ेंगे कि नहीं, ये अगेन मैं ये कहूंगा, इस पर निर्भर करेगा कि आरबीआई का क्या रुख रहेगा। आरबीआई ने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पे एक पॉज दिया है। अभी जो आखिरी मीटिंग हुई आरबीआई की, उसमें उन्होंने ब्याज दर और नहीं बढ़ाए हैं, और जनरली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से शायद बहुत ज्यादा ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद भी कम है। शायद 0.25% आरबीआई रेट यहाँ से बढ़ाए, जो कि मार्केट एक एक्सपेक्ट करती है, हालांकि कोई गारंटेड वे में नहीं कह सकता। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की डेट में ब्याज दर बैंक एफडीज दे रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी ऊपरी स्तर पर हैं। यहाँ से अगर बढ़ोतरी होगी तो कुछ शायद मामूली बढ़ोतरी हो, लेकिन जैसा कि अभी मार्केट एनवायरनमेंट है, जो इकोनॉमी का रुख है, जो आरबीआई का स्टैंड समझ आता है, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्सपेक्टेड नहीं है। जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर। पिछले वित्त वर्ष में लगातार फंड्स निकालने के बाद विदेशी निवेशकों ने मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत निवेश के साथ की है। अप्रैल में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया।
डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 3 से 13 अप्रैल के बीच 8,767 करोड़ रुपए डाले। हालांकि इस बीच उन्होंने डेट बाजार से 1,085 करोड़ रुपए निकाल लिए। मार्च में भारतीय इक्विटी बाजारों में विदेशी निवेशकों ने 7,936 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on All India Radio. And just to remind our phone numbers are 2331 4444, 2371 7106, and our third line is 2342 1050. And the STD code is needed, that's 011 before the numbers. So as you know, this is an interactive program. You can put all your questions, queries and doubts to our expert. Our expert today is Ashutosh Gupta from Value Research. And let's continue taking phone calls. We have Suresh Gupta joining us from Noida in Uttar Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. आशुतोष जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। तो मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मेरा एक प्रश्न है कि मैंने पिछले साल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उस समय इंटरेस्ट रेट 7.4% था, अभी 8.2% हो गया है। तो क्या उसको बंद करके नया अकाउंट खोलना बेहतर रहेगा और उसमें कुछ पेनल्टी लगेगी, या फिर उसको पैसे को निकाल के किसी हाइब्रिड फंड में डालना ठीक रहेगा? मेरा टाइम फ्रेम 5 साल का है। जी, तो देखिए, जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीनियर सिटीजन के, क्योंकि और मैं अभी जो प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चल रहे हैं। तो आरबीआई ने जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए फिक्स डिपॉजिट्स पे, बाकी भी जो छोटे निवेशक के लिए जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई है, सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी देखी गई और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी उनमें से एक है। आपने पिछले साल का जो निवेश है उस पर जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक किया, आज की डेट में उससे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपको निकालना चाहिए पैसा, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल एक अहम सवाल उठाया है। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस पर एक पेनल्टी लगेगी और 1 साल के अंदर विड्रॉ करने पे पेनल्टी इतनी लग जाती है कि आपको जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलेगा नए ब्याज दर पे उस पैसे को रीइन्वेस्ट करने का, मेरा ख्याल में आपको कोई लाभ ऊपर से नहीं होगा। तो आप वो पैसा निकालेंगे, एक पेनल्टी देके वो पैसा निकालेंगे और फिर आप उसको रीइन्वेस्ट करेंगे बढ़े हुए ब्याज दर पर, आपको नेट कोई उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन जो एक अच्छी बात और हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने 15 लाख से 30 लाख इसकी जो मैक्सिमम लिमिट एक निवेशक के लिए वो बढ़ाने की बात करी है। तो अगर आपको कुछ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वो अगर आप नया निवेश करेंगे तो आप उसके लिए आपको ज्यादा ब्याज दर मिल सकता है। एंड आपको निकालने के लिए तो नहीं सुझाव करूंगा। और मैं बस 1 मिनट और उनके बाकी सवालों का प्लीज खत्म कर लूं। और जहां तक आपने इसमें से निकालकर हाइब्रिड फंड में या कहीं और निवेश करने की बात करी, देखिए आज की डेट में सीनियर सिटीजन सेविंग ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पिछले साल भी आपने किया था तो आपके रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बुरा नहीं है, आपको अच्छा खासा ब्याज दर मिल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट, तो आप उसको बनाए रखिए। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप टोटल आपके रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में क्या क्या है, आप कितना निर्भर करते हैं इस पैसे से जो आमदनी है उस पर अपना घर खर्च चलाने के लिए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको और क्या क्या निवेश करना चाहिए। आमतौर पर हमारी राय ये होती है कि किसी भी सीनियर सिटीजन के पोर्टफोलियो में कुछ % इक्विटी जरूर होना चाहिए अब उनके रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो में, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो अगर आपका टोटली पोर्टफोलियो सिर्फ फिक्स इनकम की साइड, फिक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन स्कीम इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इक्विटी जरूर ऐड करना चाहिए, चाहे वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के थ्रू हो या एक सिंपल लार्ज कैप फंड या इवन इंडेक्स फंड के थ्रू। आप कुछ 10-15% कम से कम पैसा आपका इक्विटी में जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपके पास वो है तो मुझे लगता है सीनियर सिटीजन स्कीम एक गारंटीड वे में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ये काफी बढ़िया स्कीम है और आपको जरूर इसमें बने रहना चाहिए। और नोएडा से हमारे श्रोता SPS जैन जी लाइन पे हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, आशुतोष जी को भी नमस्कार। नमस्कार। अभी गोल्ड के बारे में धीरेन्द्र जी तो
काफी नेगेटिव रहते थे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आशुतोष जी से उनका विचार क्या है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए, और दूसरा अगर करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से किया जाए। जी नहीं, देखिए जहां तक गोल्ड पे विचारधारा की बात है, मैं बिल्कुल धीरेन्द्र जी से सहमत हूँ। मैं उनके और ये जैसा कि मैंने कहा कि ये गोल्ड पे इट इज हमारा जो व्यू है, उनका व्यू है या मेरा व्यू है, ये कोई हमारे इंप्रेशन नहीं है, ये एक फैक्ट पे बेस्ड है। जब आप लंबे समय में गोल्ड के रिटर्न देखते हैं, बीच बीच में गोल्ड में एक चढ़ाव आता है, किसी साल में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन आप लंबे समय में देखेंगे तो गोल्ड एक काफी निराशाजनक इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। आप 10, 12, 15 साल में देखेंगे तो गोल्ड फिक्स्ड इनकम को भी बीट करने में सक्षम नहीं पाया गया है। दूसरी बात, गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, इसका कोई अंडरलाइंग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन नहीं है। गोल्ड एक जब मार्केट में उथापथल होती है तब लोग एक फियर फैक्टर की वजह से गोल्ड की तरफ भागते हैं, उस वक्त गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है, और गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो जब भी गोल्ड में एक काफी स्ट्रॉन्ग उछाल देखा गया है, वो काफी हद तक इस टाइप की रीजन के हिसाब से देखा गया है। आप हिस्टोरिकली कैलेंडर ईयर दर कैलेंडर ईयर देख के जब मार्केट में कुछ उथापुथल का माहौल है, उस साल आप देखेंगे कि गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखिए, एक एज एन इन्वेस्टमेंट निवेश के तौर पर हम उसको कोई बहुत हाईली रेट नहीं करते हैं। जहां तक फिर भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्लियरली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से और अब तो जबकि गोल्ड फंड्स के ऊपर टैक्सेशन भी बढ़ गया है क्योंकि उनका इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस ले लिया गया है। एक 30% की स्लैब वाले इन्वेस्टर को 30% ऑफ गेन्स म्यूचुअल फंड में एज टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वर अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, और ये नए टैक्स रूल चेंज के बाद से तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का कंपैरेटिव केस और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। Yeah, but Ashutosh, don't you think we are missing out on something if we don't, have in our basket of investment, gold as 1% of investment? Because there are certain periods, say a period of 3 years or 4 years, where you see really wonderful returns from gold. Yeah, you make a fair point, but the point is, as far as a diversification is concerned to an equity portfolio, I think fixed income does a very good job. So, as a diversifier to reduce volatility in your portfolio, to bring a sense of conservatism in an otherwise equity-heavy portfolio, fixed income is always a superior alternative because the payoffs are more definitive and there is an underlying rationale how fixed income is valued. Yes, you are right that gold has been doing and will continue to, have these rallies. Yeah. Time and again. But the point is that if somebody has that kind of caliber to have that foresight to be able to preempt those rallies, take some opportunistic call and benefit out of it, that's besides the point. But I don't think that's possible for anybody on a sustainable basis. Long-term returns, as I said, have been disappointing. Fixed income has actually outperformed gold with much less volatility. So what you get with fixed income is equal or better returns with less volatility and, tax treatment which is at par. So there is a very little reason to have gold as one of the asset classes in the portfolio. Right. Let's take a look at some of the other news items as well. Global crude oil prices rose for the fourth straight week amid easing concerns over a banking crisis and the surprise decision by OPEC Plus to further cut output. The prices also gained after the International Energy Agency said that the global demand will hit a record high this year on the back of a recovery in Chinese consumption. Brent crude futures rose 1.5% this week to end at $86.31 per barrel, while US crude gained 2.4% to settle at $82.52 per barrel. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आशुतोष जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और म्यूचुअल फंड से जुड़े श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. India to become the third largest construction market in the next 2 to 3 years, says Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal. Foreign investors pump in nearly 9,000 crore rupees in the Indian equity market so far in April. And global crude oil prices rise for the fourth straight week. Brent crude jumps 1.5% this week. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us.
Goodbye and have a pleasant evening. Market Mantra.